آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ جے پور سے نئی دہلی پہنچ گئے، کابینہ میں توسیع کے سلسلے میں سینئر قائدین سے تبادلہ خیال۔ 6 ضمانتوں پر عمل آوری کا جھوٹا پروپیگنڈا، کارگزار صدر BRS KTR نے تلنگانہ کانگریس حکومت پر لگایا الزام۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ شمشیر گنج میں واقع خانگی اسکول پہنچ گئے، چہارشنبے کو پیش آئے واقعے پر تشویش کا اظہار، پولیس عہدیداروں سے بھی ملاقات۔ تقسیم جدید بل کے وعدے کے تحت کھمم میں اسٹیل فیکٹری اب تک قائم نہیں کی گئی، BRS MLC کے کویتا نے مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ تانڈور میں ہاسٹل کا دورہ کرنے کی کوشش کرنے والے BRS قائدین گرفتار، حیدرآباد کیا گیا منتقل۔ آندھرا پردیش میں فلمی انداز میں ایک شخص کا قتل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر قتل کا اعتراف، ملزم قتل کے بعد خلیجی ملک کویت روانہ۔ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے خلاف نئے مقدمات اور سروے کے احکامات جاری کرنے پر لگا دی روک۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے خلاف سروے کے احکامات یا پھر کوئی اور حکم جاری کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 پر سنوائی کے دوران مختلف درخواستوں پر یہ سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ملک کی تمام عدالتوں کو حکم جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے اگلے حکم تک اس سلسلے میں کوئی احکام جاری نہ کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے خلاف نئے مقدمات اور سروے کے احکامات جاری کرنے پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشواناتھن پر مشتمل ایک خصوصی بینچ نے یہ حکم عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق پلیسز آف ورشپ خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والی متعدد عرضیوں کی سماعت کے دوران کیا۔ عبادت گاہ قانون 1991 پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ملک کے سبھی عدالتوں کو ہدایت جاری کی ہے جب تک کہ سپریم کورٹ کا اگلا حکم نہ آ جائے، ملک میں کسی بھی عبادت گاہ، مسجد، مندر اور درگاہ کے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود اسد مدنی و دیگر کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے آج عدالت نے کہا کہ ذیل التوا مقدمات جیسے گیانواپی مسجد، متھرا شاہی عیدگاہ، سنبھل جامع مسجد وغیرہ میں کوئی بھی عدالتی سروے کا حکم جاری نہیں کرے گی اور نہ ہی ایسا عبوری فیصلہ سنائے گی جس سے عبادت گاہ کی نوعیت متاثر ہو۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ان لوگوں کو شدید جھٹکا لگا ہے جو ہر مسجد کے پیچھے مندر تلاش کرتے ہیں۔ صدر کل اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں مینجمنٹ ڈیزاسٹر بل امینڈمنٹ کے سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے اس بل میں کی جا رہی ترمیم کی سختی کے ساتھ مخالفت کی اور اراکین کے سامنے اپنی بات بھی رکھی۔ For example, 60,000 per kilometer for district and rural roads. Who will make, sir? This road is 60,000 rupees. Please tell us. Sir, even for recovery and reconstruction, the norms are kept at 50% SSR of Government of India projects. It is 55 lakhs per kilometer for roads. Who will build in 55 lakhs? No road can be made now, sir. I demand that the 50% clause should be removed and it should be at par with SSR of NHAI, sir. So now coming to PDNA, which is taken to assess the requirement for recovery and reconstruction, the existence of NDMA. Sir, many states like Kerala, Assam, Sikkim, Himachal have not released released funds on PDNA.
because of not release under PDNA, they cannot go to multi-lender agencies like World Bank. Sir, the norms for releasing funds allocation at SDRF as per 15 Finance Commission is 70% weightage is for previous expenditure and only 15% is for year population. Now, in my state of Telangana, the previous government had not utilized their amount, 1300 crores outstanding. Now, because of not utilizing, my present Chief Minister Revan Reddy is being penalized. So I request this government that government should not be penalized if the funds are not spent by previous governments. That is 70% I demand, so it should be reduced to 15%, and more emphasis should be on the actual incident of calamities. Sir, I demand from the government, this FRBM limit of 3% is there. Let 0.5% be earmarked for natural disasters. See, climate change is a reality, sir. So 0.5% should be earmarked in the FRBM so that the state governments can go to multi-lending and say World Bank. And last point, sir. In my state in August, September, the Honorable Minister, Mr. Bandi Sanjay is sitting over here. In August and September 23, we had floods and huge rainfall. 10,000 crores has been the loss. Only 2,300 crore damages to roads, sir. Still now, government is not releasing the money. Districts like Mahbubabad, Suryapet, Khammam and Warangal have suffered huge losses. There has been human loss, cattle loss, property loss, especially of Dalit community. I am concluding. So I demand that the request being made by the Honorable Chief Minister Revan Reddy on behalf of Telangana, Mr. Bandi Sanjay should pursue it and ensure Telangana has done justice. Lastly, sir, vacancies NDRF, sir. There are 14,197 personnel in service against the sanctioned strength of 18,557. And why are you not able to stop mudslides, floods which are happening in Himachal and Kerala? Floods are happening in Bihar. What are you doing? NDRF fund is 600 crores. Is 600 crores enough? Why don't you increase it to 10,000 crores when money is a no issue for you? Every time we say. So that is why, sir, I oppose this bill on this ground. Thank you, sir. वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी जयपुर से नई दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने कांग्रेस हाई कमान के अलावा दीगर सीनियर कायदीन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासती काबीना की तौसी के अलावा दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जयपुर का दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर जुमेरात की शाम सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस वेणुगोपाल और दीगर कायदीन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक काबीना में तौसी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात भी किए गए। ज़राए के मुताबिक अक़लियती कायदीन में से रुकन खान सास कौंसल, आमिर अली खां, फ़िरोज़ खान में से किसी एक को काबीना में शामिल करने के अलावा रंगारेड्डी से मल्ला रेड्डी, निज़ामाबाद से सुदर्शन रेड्डी, वरंगल से के श्रीहरि, आदिलाबाद से विवेक वेंकट स्वामी और ई श्रीनिवास, डी नागेंद्र के नाम भी ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि काबीना में तौसी का फ़ैसला आला कमान करेगी और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिन अज़ला को क़ब्ल अज़ी मौका नहीं दिया गया, उन अज़ला के अराकीन असम्बली को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों और आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन KTR और हरीश राव हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरीट की बजाय फार्म हाउस से हुकूमत चलाई। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात की सुबह कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट के साथ नाश्ता किया। BRS रुकन खान सास कौंसल की कविता ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना में बैरम स्टील फैक्ट्री के क़याम के वादे को पूरा करे। उन्होंने रियासती वज़ीर P. श्रीनिवास रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो
स्टील फैक्ट्री के क़याम में दोहरा मौक़िफ़ रखते हैं। जब वो रुकने पार्लियामेंट थे तो बैरम की बात करते थे, अब इख्तिदार में है तो वो इस मुतालबे को फरामोश कर दिया। के कविता ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से सवाल किया कि वो क्यों वज़ीर आज़म पर बैरम स्टील फैक्ट्री के क़याम के लिए दबाव नहीं डालते, इसकी वजाहत करें। బయ్యారం ఉక్కు తెలంగాణ హక్కు అనే నినాదంతోని తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భం నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఎడతెగని పోరాటం చేస్తూ వచ్చినాం. 2013 అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే కేసీఆర్ గారు అప్పుడు ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఉత్తరం కూడా రాయడం జరిగింది. బయ్యారంలో మాకు నిల్వలున్నాయి, 141,000 ఎకరాలలో 300 మిలియన్ టన్నులకు పైగా ఉక్కు మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది, అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఇక్కడ పరిశ్రమ పెట్టండి, తద్వారా స్థానిక యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక పెద్ద పరిశ్రమ మా దగ్గర డెవలప్ అయ్యేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఖమ్మం జిల్లా మరి చాలా ప్రాస్పరస్ అవుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో 2013లోనే కేసీఆర్ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఉత్తరం రాశారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 93లో పర్టికులర్గా బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆనాడు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కేంద్రంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుందన్నటువంటి అంశాన్ని పక్కన పెడితే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హామీ కాబట్టి ఆ హామీని తప్పకుండా అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఉంది. ఇప్పటికే 10 ఏళ్ల నుంచి అధికారంలో ఉన్నారు. ఎన్నిసార్లు మనము ఉత్తరాలు రాసినా, ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా కూడా పార్లమెంట్లో వాళ్ళు స్పందించలేదు. కానీ అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు కంటిన్యూస్గా ఈ ఇష్యూని ఫాలో అప్ చేయడం, అక్కడ బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే దానికి వయబిలిటీ లేదనేటటువంటి సాకు బీజేపీ చూపిస్తే దాన్ని కాదని ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్తో కూడా మాట్లాడి ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ అవసరమైతే మనకి ఇంకొక 100 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కును వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు, తద్వారా బయ్యారంలో పెట్టేటటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫీజిబిలిటీకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గా ఉన్నప్పుడు చేశారు. ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు తలుచుకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ పట్ల ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా, ప్రేమ ఉన్నా, ఇక్కడ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలన్నా, ఇక్కడ యువతకు ఉద్యోగాలు రావాలన్నా తక్షణమే భారతీయ జనతా పార్టీ బయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని పెట్టాలి, ఉక్కు కర్మాగారాన్ని నిర్మించాలి. అది వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రామిస్ రీఆర్గనైజేషన్. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन कायद लोकसभा राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दे कि वो फौरी तौर पर किसानों की रिहाई को अमल में लाने के अलावा उन पर दर्ज किए गए केसेस से दस्तबरदारी इख्तियार करें। बीआरएस रुकन असम्बली के.टी. रामाराव ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस किसानों के खर्चात माफ़ करे, जबकि कांग्रेस 6 जमातों को रूबे में लाने का झूठा प्रोपगंडा कर रही है। సోదరుణ్ణి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. ఇట్లా బేడీలు వేసి ఎవడన్నా గుండెపోటు వచ్చినోడు పారిపోతారండి? గుండెపోటు వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే జైలు నుంచి దుంకి పారిపోతారా? ఇంత అన్యాయమా? జైలు నుంచి గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్తే బేడీలు వేసి పట్టుకోమో ఇంత అన్యాయంగా, ఇంత అమానవీయంగా, ఇంత సంస్కారహీనంగా, ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. స్ట్రెచర్ మీద తీసుకురావాల్సిన మనిషిని, అంబులెన్స్లో తీసుకురావాల్సిన మనిషిని ఇవాళ ఒక పోలీస్ బండ్లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా నికృష్టంగా ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారో ఇది క్షమార్హం కానే కాదు. నేను గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, ఇంకొకటి మా మీడియా మిత్రులను కూడా అడుగుతా ఉన్నా. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14, 19, 21 ఈ 3 ఆర్టికల్స్ ప్రకారం, రాజ్యాంగం ప్రకారం, భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక అస్వస్థతగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వ్యక్తికి బేడీలు వేయడం అంటే వారి హక్కులను హరించడమే. బిఎన్ఎస్ఎస్ అనే కొత్త చట్టం వచ్చింది. ఆ కొత్త చట్టం ప్రకారం కేవలం తీవ్రవాదులకు మాత్రమే, క్రూరమైన నేరస్తులకు మాత్రమే బేడీలు వేయాలన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి తప్ప ఇవాళ రైతు బిడ్డలకు, రైతులకు, గిరిజన రైతులకు బేడీలేసిన ఒక అహంకార దుర్మార్గ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వైఖరిని ఇవాళ మనందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. పోలీస్ మాన్యువల్స్ ప్రకారం, జైలు మాన్యువల్ ప్రకారం కూడా అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలను ట్రీట్ చేయాల్సిన విషయంలో
ఉన్న అన్ని చట్టాలను కూడా తుంగలో దొక్కుతా ఉన్నారు. దీన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు దయచేసి పరిగణలోకి తీసుకోవాలని వారికి నా విజ్ఞప్తి. అదేవిధంగా ఇవాళ వాళ్ళు చేసిన నేరం వల్ల ఒక్కటే, గిరిజనులు కావడమే వాళ్ళు చేసిన నేరం, చిన్న రైతులు కావడమే వాళ్ళు చేసిన నేరం. मादिगा कायद कृष्णा मादिगा ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो अपनी काबीना में मादिगा कायद को शामिल करें. उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस मादिगा तबके को नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जिन 9 कलाकारों को 300 गज ज़मीन और एवॉर्ड्स दिए गए हैं, उनमें सिर्फ 3 का ताल्लुक़ मादिगा से है और माबखी माला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं. इस तरह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन के साथ भी नाइंसाफ़ी की है. इसे दूर करने की ज़रूरत है. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में फिल्मी अंदाज में कत्ल किया गया और सोशल मीडिया पर इसका एतराफ़ भी किया गया. जराये के मुताबिक कत्ल करने के बाद खलीजी मुल्क कोवैत रवाना हो गया और उसने ये वीडियो बनाया. नाज़रीन, इस सनसनी खेज़ खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ. आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में फिल्मी अंदाज में एक शख्स का कत्ल हुआ है. कत्ल के बाद मुलजिम कुवैत फरार हो गया और फिर वहां से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कत्ल का एतराफ़ किया. तफसीलात के मुताबिक अंजनैया प्रसाद, जो कुवैत में अपनी अहलिया के साथ मुलाजिमत किया करता है और अपनी 12 साला बेटी को उसने बहन और बहनोई के पास रखा था, चंद रोज़ कबल बेटी ने अपने वालिद को रोते हुए बताया कि फुप्पी के ससुर ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की जब वो हालत नींद में थी. वीडियो में अंजैया प्रसाद ने यह भी इंकशाफ किया कि उसकी बेटी को धमकी भी दी गई. इस सिलसिले में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसे मजबूरन कुवैत से आना पड़ा और उसने 59 साला अंजैनू को आहानी सलाख से हमला करते हुए कत्ल कर दिया. कत्ल के बाद वो कुवैत रवाना हो गया. ताहम अंजनैया प्रसाद ने कहा कि वो अपनी बेटी पर हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया था और उसने ये इंतहाई इक़दाम किया और वो खुद को जल्द ही पुलिस के हवाले करेगा. वज़ीर रेवंत रेड्डी ने लागाचरला के किसान हेरा नायक को हाथों में बेड़ियां डालकर हॉस्पिटल ले जाए जाने के वाक़े का सख्त नोट लिया है. वज़ीर ने ओहदेदारों से कहा कि आखिर किसान को इस तरह हॉस्पिटल ले जाने की क्या ज़रूरत थी. वज़ीर ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात करने और रिपोर्ट देने की हिदायत दी है. वज़ीर ने यह भी इंतबाह दिया कि कांग्रेस हुकूमत में इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर मजाज तामीरात और फिर इसकी इनेदामी कार्रवाई पर ओहदेदारों को सख्त सरजनिश की. जस्टिस CV भास्कर रेड्डी की बेंच का ये मुशाहिदा था कि ओहदेदारों की गलतियों से अवाम का पैसा मावजे पर खर्च किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि जिन ओहदेदारों ने गैर मजाज तामीरात की इजाज़त दी है उनसे रकम वसूल की जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि ओहदेदारों की गलतियों पर अवामी पैसा ज़ाया करना दुरुस्त नहीं है. अदालत ने कहा कि उन ओहदेदारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए जो पहले गैर मजाज तामीरात की इजाज़त देते हैं और फिर उन्हें इन्हिदामी कार्रवाई की नोटिस देते हैं. अदालत शमसाबाद मंडल के रंगारेड्डी में FTL और बफर जोन के तहत एक जायदाद की इन्हिदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ नोटिस के केस की समाअत कर रही थी. मौजूद जज ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त कैसे दी जा सकती है. ओहदेदार बेकायदियों का इर्तिकाब कर रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात की हौसला अफजाई कर रहे हैं. अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि FTL और बफर जोन के क़वायद को दुरुस्त किया जाए. कानून के मुताबिक नोटिस जारी करें और दरख्वास्त गुजारों को 15 दिन का वक्त दें.
तांडूर में कस्तूरबा हॉस्टल में सीमित ग़िज़ा से मुतासर होने वाले तलबा की अयादत के लिए गए बीआरएस के लीडर्स को तहवील में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। साबिक़ वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर को विकाराबाद के पास रोक दिया गया। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने पुलिस की कार्रवाई की मज़म्मत की। पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार भी हुई। बताया जाता है कि साईपुर ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात सीमित ग़िज़ा से मुतासिर हुई थी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ఈరోజు వికారాబాద్లో చెన్నారెడ్డి గారి విగ్రహం దగ్గర రోడ్ పైన కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం. మీతో సంతోషం. ఎందుకంటే ఈరోజు సాయిపూర్లో హాస్టల్లో పిల్లలకు విషాహారం తిని వాళ్ళకు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిపోయి సిక్ అయిపోయిందని 2 days బ్యాక్ పేపర్లో చూసాం. సరే 2 days తర్వాత సెట్ అయ్యిందిలే అని అనుకున్నాను. కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్లో ఫోటో చూసాను. తల్లిదండ్రులకు కూడా నో ఎంట్రీ. అంటే వాళ్ళ పిల్లలను చూసుకోవడానికి, వాళ్ళ పిల్లలు సిక్ అయిందని తెలిసినప్పుడు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదన్నప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మాకు బాధ్యత ఉంటుందా ఉండదా? మీరు తల్లిదండ్రులను అలో చేయనప్పుడు కనీసం మేమైనా కనీసం వెళ్ళి చూసి వాళ్ళకు భరోసా కల్పించి ఏం జరిగిందని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈరోజు మేము ఇక్కడ వికారాబాద్కి ఎంటర్ కాగానే, నాకు తెలియదు చన్గోముల దగ్గరనే మమ్మల్ని ఆపాలనుకున్నారని నాకు కూడా తెలియదు. కానీ ఈ రోడ్ ఎంబడి ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ రోడ్ ఎంబడి సిద్ధులూరు రోడ్ ఎంబడి వస్తే ఇక్కడ మమ్మల్ని ఆపేశారు. అసలు ఎందుకు ఆపారు అనేది ఎస్పీ గారిని, కలెక్టర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలు, అధికార పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలా? ఈరోజు మమ్మల్ని అలో చేయండి కలెక్టర్ గారు, మేము పోయి పిల్లలను చూసి వస్తామంటే ప్రోటోకాల్ వర్తించదు మేడం అంటున్నారు. ప్రోటోకాల్ అంటే నేను ఎమ్మెల్యేని, ఎక్స్ మినిస్టర్ని, తను ఎమ్మెల్సీ గారు, ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు, అంటే ఏం ప్రోటోకాల్ కావాలి? ఒక గిరిజన బిడ్డగా తను వచ్చింది గిరిజన హాస్టల్. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वन नेशन वन इलेक्शन को काबीना की तरफ से मंजूरी दिए जाने पर कहा कि 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जब इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की थी, बीआरएस पार्टी ने इसकी तायीद की थी। उनका ये भी कहना था कि हमें अब तक इस बिल के बारे में मीडिया से इत्तलात मिल रही हैं और जब हुकूमत की तरफ से ये बिल सामने आएगा तब ही हम इसके बारे में अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर पाएंगे। Well, back in 2017, when this proposal was mooted, One Nation, One Election, there was an all-party meeting which had been called by the Prime Minister, which I also have attended on behalf of my party. We had expressed our support back then. This was 2017. But now 7 years later, when One Nation, One Election bill has been cleared by the Cabinet, I've just learned it from the media. I'm not sure in what form and shape it is. You know, the devil lies in the detail. So therefore, we'll have to see the details. We'll have to see what the government is thinking in terms of constitutional amendment, in terms of gathering support. Will they call for an all-party meeting? Will they take all of us into confidence? Will they ensure that the regional parties, their ambitions, their aspirations are also taken into account? So we'll really have to see the details of the bill before we can actually commit to anything. We have to discuss within our party. We'll have to see how the government proposes to move forward with this bill. And then I think as a party we can sit and take stock and then comment. तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल मोहन बाबू की क़यामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों पर मुबैना हमला हुआ था और इस सिलसिले में उनके खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में सहाफ़ी सत्यनारायणा की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वाज़ेह है कि मोहन बाबू के बेटे मंचू मनोज को उनके घर में दाखिल होने नहीं दिया गया था। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदे भी वहां पहुंच गए थे और जब मोहन बाबू मुबैना तौर पर मीडिया के नुमाइंदों पर मुबैना हमला किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने शमशीरगंज में वाक़ श्री चैतन्या स्कूल के इंतज़ामिया से मुलाकात करते हुए मंगल और चारशंबे को पेश आए वाक़े के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया।
मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुबीन ने बताया कि तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ था और स्कूल की तरफ से इस मामले को रफा दफा भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में बाज़ अशरार स्कूल में दाखिल होकर हंगामा आराई की और तलबा पर हमले की भी कोशिश की गई। पुलिस ने भी इत्तला मिलने पर बरवक्त स्कूल पहुंचकर हालात को काबू में किया। रुकन असम्बली ने कहा कि इस तरह की शरपसंदी की मजलिस मजम्मत करती है और स्कूल इंतज़ामिया पर भी जोर दिया गया है कि इस तरह के वाक़यात का इआदा नहीं होना चाहिए। रुकन असम्बली ने मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों, एडिशनल DCP साउथ जोन MA माजिद और ACP छतरी नाका से भी मुलाकात करते हुए शरपसंद अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मोहम्मद मुबीन ने स्कूल इंतज़ामिया को सदर मजलिस के क़याम से भी वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। उनको एक्सप्लेन कर दे ये बातें तो वो लोग सुनने के उसमें नहीं हुए कि उन्होंने कैसे मतलब हमारे बच्चे को ये किया। एक्चुअली दोनों एक होली प्लेस है जहाँ पे हम हर बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। यहाँ पे हम उस बच्चे को चैतन्य के रूप में देखते हैं। हम लोग ना उन्हें हिंदू देखते हैं ना उन्हें मुस्लिम के रूप में देखते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं। ये छोड़ा ना नाम था ये कि पहले पुराना चले जाता पहले यहाँ पे शिवमारती साहब शिवमारती ऐसे ही थे। शिवमारती वेंकट रेड्डी खाजा और आपके 5 बजे तक आप स्कूल में रहता हो। जी जी घर में कम स्कूल में ज़्यादा है वो तो होना ही चाहिए। जी जी लेकिन यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे? वो 7th और 8th क्लास के बच्चे हैं सर। अगर ये लोग चाहते तो सर 7th क्लास के बच्चे मतलब जो बच्चों की लड़ाई हुई उन बच्चों को ऑलरेडी बोला गया पेरेंट्स को लेकर आने के। अगर वो पेरेंट्स सिर्फ वहीं तक आ जाते तो शायद ये मामला यहीं पे होता। हम लोग काउंसिल करते कांग्रेस पार्टी के लीडर जितेंद्र रेड्डी को तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। जितेंद्र रेड्डी ने अपने हरीफ चामुंडी को वाज़े वोटों की अक्सरियत से हरा दिया। जितेंद्र रेड्डी को 43 वोट हासिल हुए जबकि चामुंडी को 9 वोट ही मिले। रियासती वजीर सीतक्का ने तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। रियासती वजीर ने अहदेदारों की तरफ से मनमानी फैसले लिए जाने पर बरहमी ज़ाहिर की। टेंडर्स के बगैर कामों के अलाटमेंट को लेकर भी रियासती वजीर ने बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने अहदेदारों को शफाफ और गैर जानिबदारी से काम करने की हिदायत दी। तकर्रुरात के दौरान भी क़वायद की खिलाफ वर्जी पर बरहमी ज़ाहिर की गई। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ख़वातीन तंजीमों के लिए यूनिफॉर्म की फराहमी का फ़ैसला किया गया है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने बताया कि तेलंगाना की तारीख़ में पहली बार रियासत की ख़वातीन तंजीमों से वाबस्ता 63 लाख ख़वातीन को यूनिफॉर्म साड़ियाँ फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में CEO दिव्या देवराजन ने रियासती वज़ीर सीतक्का को साड़ियों के नमूने दिखाए। जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में इसे ख़तियत दी जाएगी। रंगारेड्डी जिले शादनगर बाईपास रोड पर खानगी स्कूल के बच्चों को ले जा रहा ऑटो सड़क से फिसलकर बरखी खंबे से टकरा गया। बताया जाता है कि हादसे में बाज़ बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही सरपरस्त भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। स्कूली बच्चे रोते हुए भी देखे गए। बाज़ बच्चों के मामूली जख्मी होने की भी इत्तला मिली है।
तेलुगु फिल्म स्टार और पुष्पा 2 के मारूफ हीरो अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं और उन्होंने संध्या थिएटर के सिलसिले में उन पर किए गए मुकदमे को कलादम करने की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक संध्या थिएटर में हुई भगदड़ से एक खातून की मौत हुई थी जबकि उसका बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने थिएटर इंतज़ामिया, डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा पुष्पा 2 फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया था। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के मौके पर भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में पुलिस मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू हुए। हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो का अहतमाम किया गया था और फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के बाद शायकीन में भगदड़ मच गई। हज़ारों की तादाद में मौजूद शायकीन की इस भगदड़ में एक खातून की मौत वाक़ हो गई और उसके फर्जंद को शदीद ज़ख्म आए थे। अल्लू अर्जुन ने उन पर दायर करदा मुकदमे को कालादम करार देने की हाई कोर्ट से अपील करते हुए दरख्वास्त दायर की है। वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने कहा है कि शमशाबाद एयरपोर्ट के क़याम में वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल है। एयरपोर्ट के क़याम के लिए उस वक्त 5000 एकड़ अराज़ी हासिल करना मामूली बात नहीं थी। राम मोहन नायडू ने शमशाबाद के एक होटल में मुनक़िदा तक़रीब में एयरपोर्ट प्रोडक्टिव ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के क़याम का नज़रिया सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल रहा। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल को चंद्रबाबू नायडू कौमी सतह पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में नए एयरपोर्ट्स की तामीर में असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुसाफिरीन के लिए बेहतर सहूलतों को यकीनी बनाया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रजवानी प्रोग्राम में आवाम की जानिब से पेश करदा 62% दरख्वास्तों के अंदरून एक साल यकसोई हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 8 दिसंबर 2023 को प्रजा भवन में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आवाम सरकारी महकमे जात से मुताल्लिक़ अपने मसाइल पेश करते हैं। हुकूमत की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में प्रजावानी के 84 सेशन हुए, जिनमें 43,272 दरख्वास्तें रजिस्टर्ड की गई, जिनमें से 27,215 की यकसोई कर दी गई है। प्रजावानी के तहत सरकारी स्कीमात में शमूलियत के लिए 82,955 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा महकमे जात से रुजू किया गया। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि अवाम रास्त तौर पर आला ओहदेदारों से रुजू हो सकते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना जयपुर से नई दिल्ली पहुंच गए। काबीना में तौसी के सिलसिले में सीनियर कायदीन से तबादले ख्याल। 6 जमानतों पर अमलावरी का झूठा प्रोपेगेंडा। कारगुजार सदर BRS KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा शमशीरगंज में वाक़ खानगी स्कूल पहुंच गए। 4 शंबे को पेश आए वाक़े पर तशवीश का इजहार। पुलिस ओहदेदारों से भी मुलाकात।
तकसीम जदीद बिल के वादे के तहत खम्मम में स्टील फैक्ट्री अब तक कायम नहीं की गई। BRS MLC के कविता ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। तांडुर में हॉस्टल का दौरा करने की कोशिश करने वाले BRS कायदीन गिरफ्तार, हैदराबाद किया गया मुंतकिल। आंध्र प्रदेश में फिल्मी अंदाज में एक शख्स का कत्ल करने के बाद सोशल मीडिया पर कत्ल का एतराफ़, मुलजिम कत्ल के बाद खलीजी मुल्क कुवैत रवाना। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों के खिलाफ नए मुकदमात और सर्वे के अहकाम जारी करने पर लगा दी रोक। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।